صدر ٹرمپ نے ایرانی صدر کے پڑوسی ملکوں سے معافی کے بیان کو ہتھیار ڈالنے کے مترادف قرار دے دیا. دعویٰ کیا کہ ایران سیٹلمنٹ چاہتا ہے لیکن میں نہیں چاہتا. یا تو انہیں ہتھیار ڈالنا ہوں گے یا وہ سب ختم ہو جائیں گے. بولے جنگ کے بعد ایران کا نقشہ شاید پہلے جیسا نہ ہو. ٹرمپ نے روس کی جانب سے ایران کی مدد سے متعلق خبروں کو بھی مسترد کر دیا. امریکی صدر نے اسکول پر حملے کا الزام بھی ایران پر لگا دیا. Wiped out their Navy, 44 ships. We've wiped out their Air Force, every plane. We've wiped out most of their missiles. You see, the missiles aren't coming much anymore. We've also hit their manufacturing areas where they make the missiles very hard. Their drone capacity is way down, including about every form of leadership you can have, we've wiped out. In my opinion, based on what I've seen, that was done by Iran. Whether Russia is supporting Iran somehow in this, do you? I have had no indication of that whatsoever. If they are, they're not doing a very good job. We want to pick a president that's not going to be leading their country into a war. When you look also, they all of a sudden they apologized to the Middle Eastern states that they shot at him. I was very surprised to see they did that, but you mark that down as a victory for us and for the Middle Eastern states who are really friends of ours. It's a big loss. That's a surrender right there. I called it a surrender tonight. کسی کو اپنی سرزمین کے 1 انچ پر بھی قبضہ نہیں کرنے دیں گے. ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا 2 ٹوک اعلان. اسپتال میں مریضوں کی عیادت کے دوران میڈیا سے گفتگو. کہا ایران دشمن کے خلاف مضبوطی سے کھڑا ہے, اسے پوری طاقت کے ساتھ جواب دے رہی ہیں. ایران اپنے برادر ہمسایہ ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتا ہے. اگر کسی سرزمین سے ایران پر حملہ ہوا تو بھرپور جواب دیں گے. حملوں کا مقصد یہ نہیں, ہمارے دوست ممالک کے ساتھ کوئی تنازع ہے. تمام مشکلات کے باوجود ہم سب متحد ہیں. چین نے ایران پر حملے فوری روکنے کا مطالبہ کرتے ہوئے حملوں کی مخالفت کر دی. وزیر خارجہ وانگ یی نے کہا یہ جنگ ہونی ہی نہیں چاہیے تھی. طاقت کا استعمال مسئلے کا حل نہیں. حکومت کی تبدیلی کے منصوبے کو مقبولیت نہیں ملی. چین کے وزیر خارجہ نے ایران اور خلیجی ملکوں کی سلامتی اور خود مختاری کے احترام پر زور دیتے ہوئے کہا کہ جنگ کو پھیلنے سے روکا جائے. بڑے ممالک تعمیری کردار ادا کریں. ایران کا جارحیت پر منہ توڑ جواب. حملوں کی 27ویں لہر. حیفا ریفائنری نشانہ. حزب اللہ نے بھی اسرائیل پر میزائل داغ دیے. مشرق وسطیٰ میں امریکی اہداف بھی تہران کے مسلسل نشانے پر. متحدہ عرب امارات میں الزفرہ ایئر بیس پر ڈرون حملہ. البرشا کے قریب ڈرون مار گرایا. ملبے کی زد میں آ کر 1 پاکستانی شہری جاں بحق. سعودی عرب کا 15 ڈرونز اور 1 بیلسٹک میزائل تباہ کرنے کا دعویٰ. عراق میں اربیل ایئر بیس اور بحرین میں ہوٹل پر ڈرون سے ٹارگٹ. کویت میں عرفجان بیس میں امریکی ہیڈ کوارٹرز نشانہ. 2 کویتی فوجیوں کی ہلاکتوں کی تصدیق. ادھر بحرین پر بھی نیا حملہ. سائرن بج اٹھے. امریکہ کا ایرانی یورینیم کو قبضے میں لینے کے لیے اسپیشل فورسز بھیجنے پر غور. امریکی میڈیا کا دعویٰ سامنے آ گیا. رپورٹ کے مطابق ایران کے پاس 60% تک افزودہ 450 کلو گرام یورینیم موجود ہے. امریکہ کو ایران کی یورینیم حاصل کرنے کے لیے ایرانی سرزمین پر جانا پڑے گا. رپورٹ کے مطابق ابھی یہ واضح نہیں کہ امریکہ اور اسرائیل ایرانی یورینیم قبضے میں لینے کے لیے مشترکہ مشن سر انجام دیں گے. امکان ہے یہ کارروائی تب ہوگی جب ایران کی جانب سے خطرہ کم ہوگا. مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ کا 9واں دن. پاکستان سے آج بھی 88 پروازیں منسوخ. دبئی، ابوظہبی اور شارجہ کے لیے آج 57 پروازیں آپریٹ کی جا رہی ہیں. مشرق وسطیٰ کی 9 دن میں منسوخ پروازوں کی تعداد 1400 سے تجاوز کر گئی. آج کراچی سے دبئی، دوحہ، ابوظہبی، بحرین اور دمام جانے والے 27 پروازیں منسوخ. لاہور سے 16، اسلام آباد سے 22، پشاور سے 10، ملتان سے 7، فیصل آباد سے 4 اور سیالکوٹ سے بھی 2 پروازیں منسوخ ہوئی ہیں. آپریشنل پروازوں میں کراچی سے 8، لاہور سے 11، اسلام آباد سے 11، پشاور سے 5، سیالکوٹ سے 7 پروازیں شامل ہیں. دوحہ سے مسافروں کو منزل تک پہنچانے کے لیے پہلی بار 20 پروازیں آپریٹ کی جا رہی ہیں. فضائی حدود بندش سے ایران، بحرین، کویت، قطر اور عراق کے ایئرپورٹ شدید متاثر ہیں. کچھ دیگر خبریں شامل کرتے ہیں. افغان طالبان رجیم نے افغان سرزمین سے پاکستان میں دہشت گردی خدشات نظر انداز کر دیے. کالعدم ٹی ٹی پی کی حمایت جاری رکھی جس کی وجہ سے سرحد پار جھڑپیں شروع ہوئیں. اسحاق ڈار کی سینٹ میں پیش کی جانے والی تحریری رپورٹ کی تفصیلات سما نے حاصل کر لی. اسی پر بات کریں گے اسلام آباد سے سما کے ڈیپٹی بیورو چیف بہزاد سلیمی سے. بہزاد، رپورٹ میں مزید کیا بتایا گیا ہے؟
जी, नायब वज़ीर ख़ारजा नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने अफ़गान पॉलिसी और कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक़ ये रिपोर्ट ऐवान बाला में पेश की है, जिसमें उन्होंने वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और अवाम की सलामती पर समझौता नहीं करेगा। तालिबान रजीम अफ़गानिस्तान में मौजूदा कालअदम TTP और कालअदम BLA के खिलाफ इक़दाम करे। उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ ठोस इक़दाम ज़रूरी हैं। अफ़गानिस्तान को चाहिए कि वो पाकिस्तान के जायज़ सिक्योरिटी खदशात को दूर करे। अफ़गानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द तंजीमें आलमी सलामती के लिए भी खतरा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के खदशात नज़रअंदाज किए जाने के बायस सरहद पर झड़पें शुरू हुई और अफ़गान तालिबान रजीम का कालअदम TTP की हमायत करना भी पुरतशद्दद झड़पों की वजह बना। उन्होंने रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान ने सिर्फ अपने दफा में अदम इस्तेहकाम फैलाने वाली इश्ताल अंगेजियों का जवाब दिया और पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल नहायत दुरुस्त और मतवाज़न रहा है। सरहदी इलाकों में मौजूद दहशतगर्द ठिकानों और उनके बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया है। जी सही, बहुत शुक्रिया बहजाद, आपने तफसीलन अपडेट किया। नैब कानून में नई तरमीम और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद कौमी एहतसाब ब्यूरो में भी नई जमा तफरीक शुरू। कौन से मुकदमा नैब चला पाएगा और कौन से नहीं, फैसला महंगाई की शरह देकर होगा। पहले कम अज कम 50 करोड़ रुपए करप्शन पर नैब में केस चलता था। नई तरमीम ने 50 करोड़ की हद को सालाना महंगाई की शरह से मशरूत कर दिया। मजीद जानते हैं इस्लामाबाद में नुमाइंदा समा सुहेल रशीद से। सुहेल, जो केसेस नैब के दायरे इख्तियार में नहीं रहे वो किस फॉरम पर चलेंगे अब? जी, नैब कानून में नई तरमीम के बाद नैब के अंदर एक नई जमा तफरीक शुरू हो गई है कि अब कौन सा केस चलेगा, कौन सा नहीं चल पाएगा। क्योंकि इस तरमीम में एक चीज़ जो बड़ी दिलचस्प सामने आई थी कि महंगाई के सालाना तनासुब को देखते हुए जो 50 करोड़ कम से कम रकम की हद मुकर्रर की गई थी कि इतनी करप्शन होना ज़रूरी है नैब कार्रवाई के लिए, उसको अब मल्टीप्लाई किया जाएगा सालाना महंगाई के तनासुब से। और वो जो अब तक उसके आदाद व शुमार हमारे सामने आए हैं, जो नैब में कुछ राय के मुताबिक जमा तफरीक हुई है, उसके मुताबिक आज की तारीख में 83 करोड़ रुपए की हद तक के मुकदमात भी नैब का दायरा इख्तियार से बाहर हो गए हैं। और आम हालात में जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इस साल जून तक 87 करोड़ रुपए के मुकदमात भी नैब के दायरा इख्तियार से बाहर चले जाएंगे। लेकिन इस दौरान एक और नई और ज़्यादा दिलचस्प बात ये हुई कि अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा हुआ है उससे महंगाई और ज़्यादा दुगनी रफ्तार से बढ़ने का इम्कान है। लिहाजा ये भी तवक्को अब की जा रही है नैब के अंदर के मुमकिन है जून तक 1 अरब रुपए की हद तक के मुकदमात भी नैब के दायरे इख्तियार से बाहर हो जाएं। और यूँ ये इक्वेशन मुसलसल अप्लाई करते रहना होगा नैब अफसरान को कि देखने के लिए कि जो कल हमारे दायरे इख्तियार में कोई मुकदमा था वो आज बाकी भी है या नहीं, उसको अदालत में लेकर जाना है या नहीं। और फिर मुलजमान के लिए भी एक रास्ता निकल आया है कि वो इस बुनियाद पर अपने मुकदमात को चैलेंज भी कर सकेंगे। क्योंकि वाज़ेह तौर पर लिखा गया है तरमीम में कि 2022 के बाद अब तक की सालाना तनासुब को देखा जाएगा और वो तमाम आदाद शुमार नैब ने इकट्ठे कर लिए हैं। अब जो 1 अरब रुपए की हद तक के मुकदमात भी मुतासर होने का कभी इम्कान पैदा हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने के असरात मार्केट पर पड़ रहे हैं। दुकानदारों ने सब्जियों फलों के रेट बढ़ा दिए हैं। आम मार्केटों में सरकारी रेट्स पर मिल दरामद भी नहीं हो पा रहा। मुख्तलिफ शहरों में हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। इस्लामाबाद से साथ हासिल है जहीर अली का, कराची से हमारे साथ देंगे खुर्शीद आलम, और लाहौर में क्या सूरत हाल है सामने सही से जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले शहर इक़्तिदार का रुख करते हैं। जहीर, आप बताइएगा, कुछ हद तक लोगों को उम्मीद होती है कि सस्ते बाजार कुछ रिलीफ देंगे, तो आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं वहाँ पर? देखिए, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जो इस्लामाबाद का G6 का सस्ता बाज़ार है और इसमें जो हफ्तावार बाज़ार होता है इसमें रमज़ान में इसको मान किया जाता है और इसमें चूँकि किराए नहीं होते और कोशिश होती है कि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराम किया जाए। लेकिन पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें बढ़ी हैं उसके से अगर कंपेयर किया जाए गुज़श्ता 2 दिन से, तो यहाँ पे कुछ चीज़ों के रेट काफ़ी बढ़े हैं। जिसमें जो सेब था उसका जो अव्वल सेब है उसका रेट जो है 330 340 से बढ़ के 390 और 400 रुपये फ़ी किलो हो गया है। जबकि आम मार्केट के में जो कंपेयर करें तो इसका रेट 50 रुपये और ज़्यादा है। इस तरह अगर केले की बात की जाए, जो केला अव्वल है वो यहाँ 200 180 या 190 मुख्तलिफ रेट चल रहे थे, इस वक्त 225 है, उसमें भी किसी हद तक फ़र्क आया है। और बाकी अगर जो आम मार्केट से इसको कंपेयर करें तो आम मार्केट में 300 350 रुपये फ़ी दर्जन केला फ़रोख्त हो रहा है। और दीगर सब्जियों की भी अगर बात की जाए जिसमें आलू प्याज है, तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो बढ़ी हैं उसके असरात इस वक्त सस्ते बाज़ार
में भी हैं, जबकि आम मार्केट को अगर कंपेयर किया जाए तो आम मार्केट सस्ते बाजारों में भी देखने को मिल रहे हैं। हमारे साथ ही रहेगा ज़हीर, सामिया की तरफ चलते हैं जो कि लाहौर में मौजूद है। सामिया, आप मुझे बताएं कि बाजारों की क्या सिचुएशन है, क्या जो सरकारी रेट्स हैं उन पर अमल दरामद कराया जा रहा है? शफक, जहाँ तक बात की आपने सरकारी रेट की, तो आम मार्केट्स में अगर हम देखते हैं जो इलाकों के रिहायशी इलाकों के करीब जो मार्केट्स होती हैं वहाँ पर तो इस वक्त महंगाई जो है वो सर उठा चुकी है। वहाँ पर उस तरह से रेट लिस्ट पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। लेकिन अगर हम बात करें सहूलत बाज़ारों की स्पेसिफिकली जो कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कायम किए गए हैं, वहाँ के हवाले से अगर आपको बात बताएं तो रेट लिस्ट इस वक्त भी मेरे हाथ में मौजूद है। तो इसमें कोई ख़ास रद्दोबदल नहीं किया गया। यही देखा जा रहा है कि जो गुज़िश्ता 2 दिन से जो रेट लिस्ट थी वही उसको ही एक दफ़ा फिर से रिवाइज़ किया गया है और किसी भी सब्जी या फल की कीमत में उस तरह से इजाफा नहीं किया गया। लेकिन वहीं पर जो रिहायशी इलाके हैं वहाँ पर जो है जैसे कि यहाँ पर आलू जो है तकरीबन 18 से 20 रुपए किलो में फ़रोख्त हो रहा है, जबकि आम मार्केट में ये आलू जो है 26 से 30 रुपए तक भी चला जाता है। और सब्ज़ मसाला जात की बात करते हैं, क्योंकि प्याज बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पर 52 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। टमाटर 65 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। और साथ ही साथ अगर देखें लहसुन तो 300 रुपये से, जबकि लहसुन की देसी लहसुन जो है वो 530 में भी फ़रोख्त किया जा रहा है। तो यहाँ पर पीरा फोर्स भी हम यहाँ पर देख रहे हैं जो यहाँ पर हर वक्त जो है यहाँ पर चेक एंड बैलेंस रख रहे हैं कि लेकिन अमल दरामद फिर भी बहरहाल सरकारी रेट लिस्ट पर ना होने के मुतरादिफ है। साथ ही मौजूद रहिएगा खुर्शीद, आप बताइए क्या यहाँ पर क्या सूरत हाल है? शहर क़ायद में सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद हो रहा है, यहाँ भी यही सूरत हाल है? शहर क़ायद में सरकारी रेट लिस्ट पर कभी भी अमल दरामद नहीं होता। ये सिर्फ आर्जी छापों के दौरान होता है। इस वक्त भी हमने देखा है कि फलों की कीमतें अब भी बहुत, और सब्जियों की कीमतों में भी हमने देखा है कि लहसुन और अदरक के दाम में इजाफा हुआ है। भिंडी बदस्तूर महंगी है, 300 रुपये किलो पे उसका रेट चल रहा है, जबकि भिंडी का जो सरकारी रेट बताया जा रहा था वो कुछ और था, लेकिन 300 रुपये में वो फ़रोख्त की जा रही है। इसी तरह आलू भी 40 और 50 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है। प्याज 40 के बजाय 60 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रही है। फल के हवाले से अगर हम बात करें तो गोल्डन सेब अब भी 366 के बजाय 500 रुपये फ़ी किलो में बेचा जा रहा है हम बाज़ारों में। केला 189 रुपये के बजाय 300 रुपये और 400 रुपये दर्जन में फ़रोख्त हो रहा है। खरबूजा 147 के बजाय 300 रुपये किलो में बेचा जा रहा है। जो बहुत ही थर्ड क्लास खरबूजा है वो आपको 100, 125, 150 रुपये किलो में भी मिल जा रहा है। कीनू 322 के बजाय अब भी 400 रुपये दर्जन में फ़रोख्त किया जा रहा है। बाजार आने वाले खरीदारों ने यही कहा है कि कमिश्नर कराची अपनी रेट लिस्ट पर अमल दरामद को यकीनी बनाए, शायद यही उनकी कामयाबी का सबब बन सकता हो। यही मुतालबा करें, सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद कराया जाए। बहुत शुक्रिया, मुख्तलिफ शहरों से नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद है, ताज़ा तरीन सूरत हाल समा के नाज़रीन तक पहुँचा रहे थे।